State Minister Dinesh Dhanai had allegations on Congress. Congress campaigned for BJP in Tehri to defeat me, said Dhanai. Congress respond, Dhanai is losing the poll, so he is rallying trolls. Congress State President Kishore Upadhyay targeted BJP, said wherever PM Modi campaigned, there was fall in vote percentage. BJP State President Ajay Bhatt reverts back. Hot politics over allegations on Mussoorie BJP candidature's husband. Gorkha Society representative retired Colonel Bhutia said that Thapliyal husband threatened Gorkha Society people on the voting day. Laksar's Burna village head facing caste-oriented comments charge. People from Valmiki Society had a written complaint in police station. Village head said false charges. Retired colonel wife and mother murdered in Haridwar at opposing a robbery. Robbers forcefully entered in the house last night when retired colonel was out of the city. Good evening, I am Sakshi Sevwal and you are watching HNN 24/7. Congress State President Kishore Upadhyay took a jibe at Prime Minister Narendra Modi. Upadhyay said that PM Modi election rally in different parts of the state is the main reason of fall in the polling percentage. Kishore Upadhyay had demanded that Election Commission to not consider the ballot votes post 15th of February in the counting, as the central government can hamper the defence ballot. और हमको इसमें The State Congress Committee meeting that was to be held on 24th February in the state headquarters at Dehradun has been cancelled. The meeting is now dated for 2nd March. All the party candidates and officials have been called for the meeting. The main agenda of the meeting will be review of state assembly polls. ये बड़ा चिंता का विषय है कि जहाँ-जहाँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के चरण पड़े, वहाँ मतदाताओं का अकाल पड़ गया। ये बड़ा चिंता का विषय है और वो आप आंकड़ों को देख सकते हैं। Blame game continues even after the end of the state polls. On one hand, BJP is considering the fall in the voting percentage as a boon for the party, and on the other hand, Congress is thinking that the ball is in its court. Our correspondent Vijay Mishra had a one-to-one conversation with the party state president Kishore Upadhyay for a detailed view on the matter. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी। जानते हैं कि आने वाली 11 मार्च को जो चुनाव नतीजे आएंगे उनमें वो अपनी स्थिति को किस तरह देख रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, 11 मार्च को रिजल्ट आ रहे हैं, तो कैसे कांग्रेस किस तरह से देखती है अपनी उन स्थिति को? देखिए, मैंने जो आकलन करवाया है लोगों से, आपने भी किया होगा, कांग्रेस 2/3 बहुमत से उत्तराखंड के मूर्धन्य मतदाता का आशीर्वाद उसको मिलने जा रहा है। जो हमारा समावेशी सतत विकास का एजेंडा है उसको जनता ने स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक नेगेटिविटी पर उसने अपना सारा का सारा चुनाव रखा। उनका कोई विज़न नहीं था उत्तराखंड के बारे में, और मुझे ये लगता है कि 11 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस के लिए वसंत जैसा, और वसंत है भी अभी, तो कांग्रेस के लिए कांग्रेस के वसंत के दिन आ रहे हैं।
एक चीज़ इस बार साफ देखने को मिली, पिछली बार जो वोट परसेंटेज था वो इस बार घटा है, तो आप कहीं मानते हैं कि जितने भी बागी हैं, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले हो या बीजेपी से कांग्रेस में, कहीं ना कहीं उन्हें इस बार जनता निकालेगी? देखिए, कोई भी अपनी बदनामी नहीं चाहता है और वो ये नहीं बता पाए कि उन्होंने क्यों कांग्रेस को इस तरह से धोखा दिया, क्यों पीठ पर खंजर भोंका। अरे वार करो, छाती पे करो। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जो बागी हैं उनमें से कोई चुनाव जीत पाएगा। और सबसे ज़्यादा इसमें फजीयत जो है वो भारतीय जनता पार्टी की होगी, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा राजनीतिक महापाप उत्तराखंड में क्यों किया है। कल अजय भट्ट जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें कहा था कि चुनाव से पहले पेरोल पर जो कुख्यात अपराधी छोड़े गए थे उनसे चुनाव प्रभावित करवाने की कोशिश की गई, अगर वो बाद में इसकी जांच कराएंगे, अगर इसकी जांच कराएं तो कुछ और नतीजे निकलेंगे। नहीं, वो लिख करके दे दें। अभी हमारी 11 तारीख तक तो हमारी ये सरकार है चुनी हुई और आगे हम आ ही रहे हैं। वो अगर आज ही लिख करके दे देंगे तो हम आज ही उसकी जांच करवा देंगे। उनको स्पष्ट तथ्य देने पड़ेंगे किस तरह से चुनाव प्रभावित हुए हैं और क्या प्रमाण है उनके पास। होम मिनिस्ट्री ने, क्योंकि ये सीधे सीधे जो आरोप है वो सीधे सीधे, क्योंकि सरकार उसमें अनुशंसा करती है, ये अधिकार श्री राज्यपाल जी का है। मेरा आखिरी सवाल, अब कितनी उम्मीद है कि कितनी सीटें जीत कर आ रही है कांग्रेस इस बार के चुनाव? 46 सीटें। ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी, जिनका कहना है कि इस बार वो 2/3 बहुमत से सरकार बना रहे हैं। वहीं उनका बीजेपी के ऊपर भी कहना है कि वो चुनाव के दौरान उन्होंने जनता को भड़काने का काम किया है। कैमरामैन पंकज गोसाई के साथ विजय कुमार मिश्रा, HNN न्यूज़, देहरादून। Politics is heating over the allegations put on Mussoorie Congress candidate Godavari Thapliyal's husband. The state coordinator of the Gorkha community, retired Lieutenant General T.D. Bhutia, has alleged Upendra Thapli of bullying the people during poll campaigning and threatening the entire Gorkha community of advertise that it will have to face it in Godavari Thapli did not win in the polls. ठीक है, हारते हैं तो गोरखा समाज का पतन निश्चित है, उन्होंने ये बयान दिया है। कब कहा ये 15 तारीख को जोड़ी गांव में ये चीज़ बोला है इनकी। हमारे पास 15 तारीख चुनाव ख़त्म होने में 5-10 मिनट थे, तो वहाँ पे आके टेबल पे हाथ रख करके उन्होंने ये सब गाँव में बोला है। क्या चाहते हैं इस मामले में? तो ये हम अपने समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं आपके द्वारा कि ऐसे कृत्य हो रहा है, तो आप विचार करें आप लोग। अगर केवल आरोप मनगढ़ंत है, इसका मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अन्यथा जब चुनाव हो गए तो वो प्रत्याशी जानता है, आचार संहिता को भी जानता है, समझता है, संविधान को समझता है, क्यों डराने धमकाने का काम करेगा। और डराने धमकाने से A family opposing the forgery in Chakrata during the state poll has been excommunicated by the Khap Panchayat. BJP candidate from Vikas Nagar constituency Munna Singh Chauhan has raised his voice against the decision. He hit out at both the government and the current MLA Pritam Singh on the matter. Chauhan also raised questions on SDM's investigation system. नहीं, ये चक्राता विधानसभा के त्यूनी क्षेत्र में इस प्रदेश के गृह मंत्री, चक्राता के माननीय विधायक श्री प्रीतम सिंह जी, उनकी एक गुंडागर्दी की सल्तनत है और वो प्रमाणित है कि दशकों तक उन्होंने जो पुलिस का थाना स्वीकृत था उसको एक्टिवेट नहीं होने दिया। और शर्मनाक है कि प्रदेश का गृह मंत्री कहता है कि पुलिस के थाने से अपराध बढ़ते हैं, तो फिर उनको तो निर्णय करके पुलिस व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाहिए। People of the Valmiki community of Laskar Burma village reached the police headquarters and put serious allegations on the illegal hit Babu for using caste-oriented words and abusive languages. They filed a file against Bablu and demanded strict action in the case. Speaking on the allegations, alleged head said that he is being accused by those who were trying to encroach the government property, and when he opposed it, the people came up with this charge. एक जगह पे वहाँ पे रोड है,
और रोड का जो निर्माण वो कह रहे हैं कि ये अवैध है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो अवैध नहीं है। और उसके बाद इस समय प्रधान जी वहाँ पे आते, प्रधान जी ने हमारा काम रुकवा दिया है और हमें ये कहा गया है या तो तुम सुधर जाओ वरना भंगी आप तुम लोगों के यहाँ से गाँव से बर्तन भरवा दिए जाएंगे। इसलिए हम थाने कचहरी में आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें तीन दिन हो गए, अब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। आज प्रधान जी यहाँ पे आए, वो भी थाने वालों ने बुलाए और सिर्फ फैसला करवाने के लिए बुलाया, लेकिन प्रधान जी यहाँ से उठ के चले गए, कोई बात नहीं हो पाई अभी तक। अवैध निर्माण कर दिया था, सड़क पर करीब 5 फुट अवैध निर्माण कर लिया था। जब मुझे गांव वालों ने बताया तो मैं सुबह वहाँ गया, जाकर इन्हें कहा भाई अवैध निर्माण ना करो। अवैध निर्माण को मना करने पर ये मेरे पर झूठे आरोप लगा दिए। ये भुरना गांव के सुदेश देवी पत्नी स्वर्गीय रामपाल, इसने एक एप्लीकेशन दे रखा है थाना हजा पर कि मैं अपनी जमीन पे बुनियाद खुदवा रही थी। इसी दौरान ग्राम प्रधान आया और मेरे साथ गाली गलौज करने लगा। तहरीर थाने पे प्राप्त हो रखी है। ग्राम प्रधान मौके पे गया, वो अपनी ज़मीन पे बुनियाद खोद रही है। अचानक ग्राम प्रधान का गाली गलौज करना ये गले नहीं उतर रही है। जांच का विषय है, इसमें जांच की जाएगी, बाद जांच जैसी कार्रवाई। The issue of illegal mining is not new to Uttarakhand. It is the same old story every time. Allegating are opposed of opposition and the government tries to play safe by giving justification on the matter. A petition is filed in the court and after the court hearing, the state government is ordered to take strict actions against the mining mafias. However, the known fact is that the state official take the order seriously for only short period and thereafter the game of illegal mining continues at its normal place, but the issue is once again in the limelight. ये थाना तो भगवानपुर पड़ेगा ना? भगवानपुर यहाँ तो हाँ भगवानपुर। कौन सा दरोगा था? नाम से है कौन था? 500 रुपए में खरीद आगे मांगे, पुलिस वाले मांगे थे। अजी पुलिस वाले अलग ले। अच्छा हाँ 200 रुपया तो ही ले रहे हैं इस बेड पर चुरा है भाई कलेर वाले। हाँ एक ट्रॉली के जी पर ट्रॉली के। हाँ एक ट्रॉली के। बहुत खर्चा, तुम्हें कहाँ जाओगे? अजी कहीं भी नहीं, बस नो ये लंदो पे ले को खड़े कर रखे, बताओ पड़ रही इनकी। आज क्या मामला, आज क्यों जान दिया रखते हैं? आज बस आज सामने हिंदी है मने कर दे। कम से कम बड़ा 50 ट्रैक्टर हो गया। अच्छा ऐसो कौन सा? कलेर वाले महीना का वो टाइम पर ना देखो जी, उन्होंने महीने की बात करी उन्होंने महीने की बात, फिर क्या दिक्कत है? फिर तो अगर महीने की बात करते फिर Orders of SP Ramchandra Rajguru to keep a check on drugs and illegal arms trafficking, and it is now showing the effect in the district. In the past 2 weeks, police has seized 4 illegal local-made pistols, and today 2 locally made pistols were recovered from a Bareilly resident, after which the police filed the case under the Arms Act and put the accused behind bars. शिक्षक महोदय चंपावत के दिशा निर्देशन में उनके आदेश पर अवैध मादक पदार्थों की व अवैध असलों की तस्करी में की सूचना पर मामूर थे क्षेत्र में हम लोग जैसे ही सूखी ढांग से नीचे की तरफ अपने चंपावत कोतवाली की बाउंड्री से करीब 100-200 कदम पीछे थे, तो हमें एक संदिग्ध व्यक्ति बैठा दिखाई दिया आड़ में। हम रुक के उसकी तलाशी ली, हमने उससे नाम पता पूछा तो वो थोड़ा डरा घबराया, तो उसकी तलाशी में हमें ये 2 तमंचे बरामद हुए, एक 12 बोर का जिसमें और एक 315 बोर का। A big achievement for the Haldwani police. An 8-year-old girl who went missing since Tuesday night has been safely rescued from the Gora Padav jungle in Haldwani. As per sources, an unknown auto driver kidnapped the 8-year-old and took her to the Gora Padav jungle. As soon as the police got the information, it seals the city and starts searching the missing girl. On the other hand, the accused abandoned the girl in the jungle and filed the place. कल रात करीब 7 बजे सूचना मिली थी कि 8 वर्षीय बालिका को कोई टेम्पो वाला अपने साथ बैठा कर ले गया। रात में भी इस संबंध में आसपास के क्षेत्रों में कॉम्बिंग की गई। सुबह करीब 7 बजे किसी महिला द्वारा 100 नंबर पर सूचना दी गई कि एक बच्ची यहाँ मिली है कल रात गोरापड़ाव में। तो ये वहाँ पर करीब उनको 5 बजे करीब वहाँ मिल गई थी रोते हुए जंगल में, जो इसको टेम्पो में बैठा के ले गया था जंगल में। An FIR has been filed in Haridwar police station against 2 policemen. According to the victim, businessman, his car was stopped and he was asked to step out. As he stepped out, both the accused started beating him. The 2 policemen have also been alleged of being high on alcohol. Haridwar CO said that action will be taken against both the policemen after proper investigation of the matter.
The traffic arrangement is rerouting the state capital due to increase in the number of vehicles, which is affecting the normal course of life. Doon Medical College being near to the corporation is the main reason for the parking problem. Speaking on the issue, Mayor Vinod Chamoli said that he has sent a proposal to the government for the construction of a 2-story building for parking in the corporation courtyard. He spoke about beautification of the clock tower also. A good news for the people who travel in the buses of Uttarakhand Transport Corporation. Now you can book the ticket for the ordinary buses online. This facility was already for the high-tech buses, but now, according to the transport official, the people will not have to visit to the booking station and long up in the queue will also have to wait. नहीं, अभी तो हमारी वोल्वो और एसी बसें ऑनलाइन यात्री अपने घर से टिकट बुक करा सकता था। कुछ लंबी दूरी की सेवाएं पहले से भी ऑनलाइन थी, लेकिन अभी हमारे पे नई बसों का बेड़ा प्राप्त हुआ है, तो जिनकी पंक्चुअलिटी और टाइम टेबल ठीक रहेगा, तो हम लोगों ने उसको देखते हुए साधारण बसों को भी करीब 400 बसों को ऑनलाइन बुक करने की योजना बनाई है, जिसमें लगभग 200 कर दी गई है, 200 बहुत शीघ्र कर देंगे। इससे ये होगा कि जैसे अब त्यौहार का सीजन आने वाला है, तो लोग अपनी सीट के लिए बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, या सैटरडे संडे को भीड़ रहती है, तो अपने घर से अपनी सीट सुनिश्चित कर लेंगे और आराम से उसी टाइम बस अड्डे पहुंचेंगे, और इससे निगम की भी आय में। And it's time for a short break.